A very pleasant morning to one and all present here. This is Abhilasha Nahata from Layal Public School. And students, today we all are going to continue our chapter number 9 from your history textbook. The name of the chapter is The Making of Regional Cultures. In our previous class, we have gone through what is culture, what are the things which we consider as culture, like we consider different types of foods of food, clothes, poetry, dance, music of a particular place as a culture. We consider language, we consider all these things as a culture. After that we have gone through one of the example of the development of language, that is development of Malayalam, how Malayalam language develops, and what was the role of Cheras at that time. Okay, after that we have gone through the development of religious traditions, how with the time the importance of we have gone through one of the example of the temple, the Jagannath cult, and with this example we get to know how with the time the importance of this temple increased socially, politically, even spiritually, how this temple gained the importance. Okay, now just our next topic for today is the Rajputs and the tradition of heroism. The Rajputs and the tradition of heroism. Okay, so 19th century, the regions that constitutes most of the present day Rajasthan was called Rajputana by the British. While this may suggest that this was an area that was inhabited only or mainly by Rajputs, this is only partially true. नाउ 19th सेंचुरी में क्या हुआ था, बहुत एक ऐसा रीजन जो प्रेजेंट डे राजस्थान का रीजन है, वहां का जो रीजन है उस रीजन को राजपुताना बोला जाता था. ब्रिटिशर्स उस रीजन को राजपुताना बोलते थे. क्या बोलते थे? राजपुताना. They consider this period as, they consider that region as Rajputana. So with the example of this, we will able to understand the development of a region, कि region के according जो development हुई उसके through हम culture को क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं. Okay, so now कुछ लोग इसको ये भी बोलते हैं कि ये जो रीजन है राजपूत्स ने जो है उसको क्या किया है, इनहैबिट किया है, इसलिए इसको राजपुताना कहते हैं. बट ये आधा सच भी माना गया है. कुछ लोग इस चीज को बिल्कुल नहीं मानते हैं कि ये जो रीजन है एंटायरली राजपूत्स ने ही जो है इनहैबिट किया है. There were and are several groups who identify themselves as Rajput in many areas of northern and central India. Even in northern and central India की बहुत सारे जो आपके प्रेजेंट डे हिमाचल प्रदेश हो गया, आपका मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, वहां पे भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो अपने आप को राजपूत एज अ राजपूत क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं. And of course there are several peoples other than Rajputs who live in Rajasthan. However, the Rajputs are often recognized as contributing to the distinctive culture of Rajasthan. And obviously, there are so many people who live in Rajasthan who are not Rajputs. Okay, but however, Rajputs are often recognized as contributing to distinctive culture of Rajasthan. जो राजस्थान का जो ये culture है different है, ये जो बहुत ही colorful culture है, वो बहुत बार ऐसा माना जाता है, इवन यही माना जाता है कि राजपूत ही जो है उन्होंने ही जो ये कलरफुल कल्चर है राजस्थान का उन्होंने ही कंट्रीब्यूट किया है, उन्होंने ही जो है चेंजेस लाए हैं. नाउ जस्ट लुक एट दिस फिगर 4. दिस इज द फिगर ऑफ प्रिंस राज सिंह ऑफ बीकानेर. बीकानेर के प्रिंस राज सिंह का फिगर है ये. ओके, नाउ जस्ट लुक एट द अटायर ऑफ दिस प्रिंस. Now, these cultural traditions were closely linked with the ideals and aspiration of rulers.
From about the 8th century, most of the present day state of Rajasthan was ruled by various Rajput families. जो हमारा ये कल्चरल ट्रेडिशन है, ये बहुत सारे आइडल्स हैं, बहुत सारे एस्पिरेशंस हैं रूलर्स के, उससे काफी बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशन है, बहुत इंटरलिंक्ड किया हुआ है। और 8th सेंचुरी से प्रेजेंट डे जो राजस्थान है वो बहुत सी राजपूत फैमिलीज क्या कर रही है, रूल कर रही है। पृथ्वीराज was one such ruler। पृथ्वीराज चौहान, सबने पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना है। उनका जो कंट्रीब्यूशन था हमारे लैंड के लिए, और कितने ब्रेव वो रूलर रहे, हम सब जानते हैं। These rulers cherished the idol of the hero who fought valiantly। अब और हम सब जो है इस हीरो को बहुत ज्यादा मानते हैं, उनकी जो प्रैक्टिसेस थे इवन उसको भी हम रिकॉर्ड करके रखते हैं और प्रिजर्व करके रखते हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए, जिससे कि जो भी ऑर्डिनरी पीपल हैं उनकी प्रैक्टिसेस को क्या कर सके, वो उनकी प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सके, और पूरी जो कम्युनिटी है वो इस ट्रेडिशन को ओरली जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास करते हैं। तो ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जब ओरली हम अपनी प्रैक्टिसेस को जब बताते हैं, लाइक वी ऑल somehow know the story of रानी रानी पद्मावती की हमने स्टोरी सुनी है। तो ओरली जो है हमने उनके बारे में, उनका जो कंट्रीब्यूशन था, उनका जो डेडिकेशन था, उस चीज को हम जानते हैं। उनको एज अ गॉडेस भी बहुत सारे लोग जो है उनको क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं। तो ओरली उनके बारे में हम काफी कुछ जानते हैं, और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक वो जो उनके जो कंट्रीब्यूशन थे उसको बताते हैं। और आफ्टर दैट समहाउ वी रोट अबाउट देम, कुछ लोगों ने उनके बारे में लिखा भी। तो ऐसे जो रूलर्स हैं उनको हम, उनके जो हीरोइज्म है, उनकी जो ब्रेवरी है कि कैसे वो बहुत बिना डरे बहुत करेज के साथ उन्होंने क्या किया, लड़ाई की। उन्होंने बैटलफील्ड में कोई भी अगर वॉर होता था, कोई भी युद्ध होता था, तो हार की जगह वो अपनी डेथ को चूज करते थे, पर अपने प्राइड को कभी भी नीचे नहीं होने देते थे। Stories about Rajput heroes were recorded in poems and songs which were recited by specially trained minstrels। Now जो stories है राजपूत की हो गई, ठीक है, राजपूत की जो हीरोइज्म की जो स्टोरी है, हम बहुत सारी मूवीज के थ्रू भी हमें पता चलती है, इवन बहुत सारे स्टोरीज के थ्रू हमें पता चलता है। जो भी हमारे पास एविडेंसेस है उसके बेसिस पे, सॉन्ग्स के थ्रू, पोम्स के थ्रू हमें पता चलता है उनके ब्रेवरी के बारे में कि कितने ब्रेव थे वो राजा, और उनके स्टोरीज हमें देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। These preserved the memories of heroes and were expected to inspire others to follow their example। And बहुत बार क्या होता है, ये सारी जो स्टोरीज हैं, सॉन्ग्स हैं, पोम्स हैं, जिसके थ्रू हमें पता चलता है उनकी ब्रेवरी के बारे में, ये सब हमें इंस्पायर करते हैं। जो ऑर्डिनरी पीपल हैं उनको बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं। उनके एग्जाम्पल से हमारे अंदर करेज, हमारे अंदर ब्रेवरी, ये बहुत सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हमारे अंदर आते हैं। Ordinary people were also attracted by these stories, which often depicted dramatic situation and dramatic situations and a range of strong emotions: loyalty, friendship, love, valor, anger, etc। अब बहुत सारे जो लोग हैं, स्पेशली जो कॉमन सिटीजन्स हैं, जो ऑर्डिनरी पीपल है, वो काफी अट्रैक्ट होते हैं इनकी स्टोरीज से। इनके अंदर जो है बहुत ज्यादा क्या है, एक मतलब कि इंस्पिरेशन, ये जो राजाज हैं, राजपूत हीरोज हैं, ये एक इंस्पिरेशन बनते हैं, और इनके थ्रू हमारे अंदर कुछ जो इमोशंस हैं वो डेवलप होते हैं। लॉयल्टी, कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ, हम अपनी फैमिली के साथ, अपने कंट्री के साथ कितने लॉयल हैं। फ्रेंडशिप जो है इसकी हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस पता चलती है। लव, वेलर, ये सारे जो इमोशंस हैं हमारे अंदर बहुत ज्यादा डेवलप होते हैं।
वेलर का मतलब होता है ग्रेट करेज, कि डेंजर के टाइम पे भी, इन द एट द टाइम ऑफ डेंजर, लाइक वी हैव द ग्रेट करेज, कि कितना हम करेज दिखाते हैं, हम जो वीरता वर्ड है उसको इंग्लिश में जो है वेलर बोलते हैं। एंगर, ये सारे इमोशंस जो हैं काफी शो करते हैं, ये जो राजपूताना है वो काफी शो करता है, और ऑर्डिनरी पीपल जो है इनसे काफी इंस्पायर भी होते हैं। Did women find a place within these stories? Sometimes they figure as the cause for conflicts, as men fought with one another to either win or protect women. So yes, now the main question arises here, क्या औरतों का कोई रोल है इन स्टोरीज में, या फिर खाली आदमी ही या फिर राजास ही आते थे? तो obviously women played a very vital role in these stories, because most of the time the cause for conflict, they become the cause for conflict. जो लड़ाइयाँ होती थी, कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, लड़ाइयाँ होती थी, फाइट्स होती थी, उसका जो मेन कारण था, मेन कॉज था, वो क्या था? वो समटाइम्स जो थी वो क्या थी? वुमेन थी। ठीक है, जो राजा होते थे या जो मैन होते थे, या तो एक वो वुमेन को इधर विन और प्रोटेक्ट वुमेन, या तो किसी वुमेन को जो है वो जीतना चाहते थे, या फिर उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो बैटल किया करते थे। वुमेन आर ऑल्सो डिपिक्टेड एज फॉलोइंग देयर हेरोइक हस्बैंड्स इन बोथ लाइफ एंड डेथ। देयर आर स्टोरीज अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ सती और द इमोलिशन ऑफ विडोज ऑन द फ्यूनरल पायर ऑफ देयर हस्बैंड्स। सो वन ऑफ द एग्जांपल, जो सती प्रथा थी, ऑब्वियसली दैट वाज नॉट गुड, बट समटाइम्स जो ये इमोलिशन था, ठीक है, विडोज का जो इमोलिशन था, वो अपने लाइक अपनी सेल्फ डिफेंस में, अपने प्राइड में उन्होंने जो बहुत जो है क्या करते थे? सती प्रथा करते थे। सती प्रथा में जैसे यू हैव सीन द you might have seen the movie पद्मावती, you might have seen the, उसमें जो एक इंसिडेंट बताया गया है कि जो रानी पद्मिनी है उन्होंने जौहर किया था, तो फॉर हर ओन प्रोटेक्शन, ठीक है, जब उन्हें पता चला कि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो उन्होंने अपने प्रोटेक्शन के लिए क्या किया? जौहर किया था। वो जो है वो फ्यूनरल, उनके जो फ्यूनरल पायर था, या फिर जो एक अग्नि में उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया था? जला लिया था। तो एक छोटा सा इंसिडेंट जो हमें मूवी के थ्रू भी पता चला, और इवन हमें बहुत सारी पोम्स के थ्रू भी पता चला था कि कैसे रानी पद्मिनी ने जो है वो ये जौहर किया था। तो ये जो हेरोइक हस्बैंड्स थे, जो बहुत ज्यादा ब्रेव हस्बैंड्स थे वुमेन के, या फिर जो राजा की जो रानियां थी, अगर ये चीज किस लिए करती थी? कि अपने हस्बैंड से के साथ जो उन्होंने प्रॉमिसेस किए हुए थे, उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो दोस who followed the heroic idol often had to pay for it with their lives। और जो sometimes अगर कोई इन्हें फॉलो करता था, इनके कंट्रीब्यूशन को, इनको सपोर्ट करता था, तो समटाइम्स उनको भी अपनी लाइफ के साथ क्या करना पड़ता था? बहुत बार उसका बलिदान देना पड़ता था। नाउ जस्ट लुक एट दिस मैप। ये जो मैप है क्या दिखा रहा है? रीजन्स डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। जो रीजन्स थे, जो लैंड टेरिटरी हमने डिस्कस किए इस चैप्टर में, उसके बारे में देखो। चेरास के बारे में बात किया, तो ये देखो केरला का, यहाँ पे केरला मार्क्ड है। हमने उड़ीसा, पुरी की बात की थी, तो देखो ये रहा प्रेजेंट डे उड़ीसा, ये रहा, ठीक है। अभी हमने राजपूताना राजस्थान की बात की, तो देखो ये प्रेजेंट डे राजस्थान है। तो ऐसे ही हम एक दो चीजें और डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम कथक के बारे में डिस्कस करेंगे, वृंदावन मथुरा के बारे में डिस्कस करेंगे, जो प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश में है। ओके, नाउ जस्ट लुक एट दिस नेक्स्ट कल्चरल बियॉन्ड रीजनल फ्रंटियर्स, द स्टोरी ऑफ कथक। अब डांस के थ्रू हम समझते हैं कि कैसे डांस में जो है एक एवोल्यूशन आया, ठीक है। Beyond regional frontiers, the story of Kathak. If heroic traditions can be found in different regions in different forms, the same is true for dance.
Let us look at the history of one dance form, that is Kathak, now associated with several parts of North India. The term Kathak is derived from Katha, a word used in Sanskrit and other languages for story. Kathak is a term which is derived from Katha. Katha बोलते हैं ना स्टोरी के लिए, जो एक संस्कृत टर्म है कथा, जिसका मतलब होता है स्टोरी. तो कथक जो है, कथक के थ्रू, डांस के थ्रू हम डिफरेंट स्टोरीज को क्या करते थे, बताते थे. The Kathaks were originally a caste of storytellers in temples of North India who embellished their performances with gestures and songs. Kathak began evolving into a distinct mode of dance in the 15th and 16th centuries with the spread of the Bhakti movement. The legends of Radha Krishna were enacted in folk plays called Ras Leela, which combined folk dance with the basic gestures of the Kathak storytellers. Now, जो राधा कृष्ण है, राधा कृष्ण की जो स्टोरी थी, उनके रास लीला की जो स्टोरी थी, वो कथक के थ्रू, अपने गेस्टर्स के थ्रू, अपने सॉन्ग्स के थ्रू, अपने परफॉर्मेंसेस के थ्रू क्या करते थे, वो डिस्क्राइब करते थे, वो परफॉर्म करते थे. जो स्टोरी टेलर्स थे वो बताते थे राधा कृष्ण की जो रास लीला थी, उनके जो फोक प्लेस थे, जो कृष्ण की लीलाएं थी, उनको उन्होंने अपने डांस के थ्रू, कथक के थ्रू क्या किया, लोगों को वो बताते थे. So under the Mughal emperor and their nobles, Kathak was performed in the court, where it acquired its present features and developed into a form of dance with a distinctive style. Subsequently, it developed in two traditions or gharanas, one in the courts of Rajasthan, that is Jaipur, and other in Lucknow. Now, मुगल एम्परर्स के अंडर और उनके जो जितने भी नॉबल्स थे, उनकी जो फैमिलीज थी, उसमें कथक को जो है परफॉर्म किया जाता था. और उसका जो एंड मुगल एम्परर के टाइम, मुगल एम्पायर के टाइम ही कथक जो है काफी इवॉल्व हुआ था, इसको एक डांस फॉर्म दे दिया था, बहुत ही अलग स्टाइल का डांस फॉर्म दे दिया था. और सब्सिक्वेंटली धीरे धीरे क्या हुआ, अब ये दो ट्रेडिशंस, मतलब दो घरानास में जो था काफी डेवलप हुआ. पहला तो राजस्थान जयपुर में, और दूसरा लखनऊ, जो प्रेजेंट उत्तर प्रदेश की जो आपकी कैपिटल है लखनऊ, वहां पे. Under the patronage of Wajid Ali Shah, what is patronage? Those who support culture, ठीक है, जो आर्ट को, कल्चर को सपोर्ट करते हैं और उसको डेवलप करने में हेल्प करते हैं, तो उनको हम पैट्रोनेज बोलते हैं. Wajid Ali Shah, the last Nawab of Awadh, it grew into a major art form. By the third quarter of the 19th century, it was firmly entrenched as a dance form not only in these two regions, but in the adjoining areas of present-day Punjab, Haryana, Jammu and Kashmir, Bihar, and Madhya Pradesh. अब वाजिद अली शाह जो लास्ट नवाब थे अवध के, इनके टाइम पे भी ये जो कथक है काफी ग्रो किया, ये आर्ट फॉर्म काफी ग्रो किया. और धीरे धीरे 19th सेंचुरी में अब जयपुर और लखनऊ में ही नहीं, और भी दूसरे एरियाज में जो है कथक बहुत ज्यादा फेमस होने लग गया था. प्रेजेंट डे पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश, यहाँ पे भी जो है ये आर्ट फॉर्म, ये जो डांस फॉर्म है, काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करने लग गई थी. नाउ emphasis was laid on intricate and rapid footwork, elaborate costumes as well as on the enactment of stories. अब इसमें क्या है, इस आर्ट फॉर्म में जो रैपिड फुटवर्क है, बहुत ही इंट्रिकेट का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, डिटेल्ड हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कि डिटेल्ड फुटवर्क स्टार्ट हो गया, ठीक है. बहुत ही कॉस्ट्यूम्स के अंदर बहुत चेंजेस आए, जो स्टोरीज है उसे बनाने में काफी डिफरेंसेस आने लग गए थे, काफी डिटेल्ड स्टोरीज बताने लग गए थे. Kathak, like several other cultural practices, was viewed with disfavor by most British administrators in the 19th and 20th centuries. However, it survived and continued to be performed by quotations and was recognized as one of the 6 classical forms of dance in the country after independence. अब obviously British administrators ने भी कथक को क्या किया था, डिसफेवर किया था, उन्होंने इस डांस फॉर्म को बिल्कुल लाइक नहीं किया था. एंड बट फिर भी जो कथक है वो quotations के
कोटेशंस में क्या है, जो राजा के दरबार वगैरह हुआ करते थे, चीफ्स के दरबार वगैरह में क्या है परफॉर्म किया जाता था। और आफ्टर इंडिपेंडेंस इन आवर कंट्री इट वाज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द 6 क्लासिकल डांस फॉर्म्स। क्लासिकल डांस, वी विल टॉक अबाउट क्लासिकल डांस इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, 6 जो आपके क्लासिकल डांसेस हैं प्रेजेंट डे इंडिया में, दे आर भरतनाट्यम, कथकली, उड़ीसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी। Okay, these are Manipuri. These are the 6 classical dance forms. Okay, Kathak, Bharatnatyam, Kathakali, Odissi, Kuchipudi, and Manipuri. So this is all about today. So now we will discuss our next topic.